these are the few programs that I'm thinking that we will be discussing today. The first program is the find even odd number using the bitwise AND. Then we will uh, do a program in which we will be converting the Celsius into Fahrenheit. The third program will be to find the greatest of three numbers using the ternary operator. Fourth one is find the length of a number in case we have 123 as the input. The length of the number is 3. Then sum of digits we will be covering. Sum of digits means that if the number is 123, the sum should be 6 because 1 plus 2 plus 3 is 6. The next program is to discuss on reverse of a number. For example, I give the input of 123, output should be 321. So the reverse of a number should be printed. And because we will be working on different digits in question number 4, 5, and 6, this will enable us to work on the Armstrong number, that if my number is Armstrong or not. So we will be working on this Armstrong or not. Then eighth question will be, there will be two variations of Armstrong. One thing will be Armstrong or not, true or false. Okay. The second version will be to print all the Armstrong numbers between 1 to, let's say, number Z. तो Z आप input करोगे, let's say 10,000. 1 to 10,000 के जितने भी number Armstrong होंगे सारे print होने चाहिए. We will also do that version. Then the last program, or maybe the second last program that we will be discussing today, will be prime number. Someone just said that prime number wala bhi karna hai. So prime number will be done today itself. That if the number is prime or not, true or false, and also print all the prime numbers between 1 to Z in the range, in the given range. The last question that I want to discuss today will be around the Fibonacci series. So I want to cover all these programs. We will do them one by one, and I will also tell you that how. First, I will be telling you what this means, and then I will be explaining how we will do it. So let's start from the first program. In the first program, we are supposed to work on bitwise and I want to make the code for even odd number, that if my number is even odd. So if you know what are bitwise operators, can anyone tell me what are bitwise operators? You people told that you know what operators are. बताओ bitwise operator क्या होते हैं? So is bitwise and the two times and symbol that we write. Bitwise AND is this single ampersand. Double AND वाला जो होता है that is logical AND. तो इन दोनों का So we difference haven't समझाऊंगा done अभी. bitwise operators. We have done logical operator. Okay. Um, Yes, So sir. so if you have done logical operator, can you tell me what will be the output in case I write this? If 1 and 2, what will be the output? In fact, if I write here print hello, printf hello, else printf world. Can you tell me what will be the output in World. this case? so World. World? like if the Yes, sir. input is What's the 1 or input? 2, then Sir, they I think there will be error in this because combining with and there should be relational. So one person is saying that there should be error. What is the second thing that your people are saying? क्या output होगा? Sir, world. One person is saying it should be world. What else? It depends upon the input. If we use 1 and 2, it will give hello, else it will give word. हाँ तो 1 and 2 is इसमें कोई input नहीं है. It is just that I am passing the integer values. I am doing the logical AND on these integer numbers 1 and 2. There is nothing else going in the input. Only this code is there. What will be the output in this case? सर ये एंड तो हमने कभी डाला ही नहीं. लॉजिकल एंड आप लोगों ने पढ़ा क्लास में? मेरे को तो ये सुनने में आया, अभी बताया आप लोगों ने. yes sir. So we have done logical and but we Yes. सर नहीं hello ही आएगा. Okay. So in this, correct answer is hello. Why it is hello, I will show you. First, I want to implement this and I want to confirm that it is hello only for you people. So hash include stdio.h int main. Can you people see my coding screen? Yes, sir. yes sir. Okay.
So in case I write if 1 logical and 2, सर सी से सी प्लस प्लस थोड़ी ज़्यादा इजी नहीं है? दोनों इजी हैं, ज़रूरत पे सब आसान हो जाता है। सपोज आपकी जॉब चल रही है, आपको 1 लाख सैलरी मिलती है, एम्प्लॉयर ने बोला कि सी प्लस प्लस पे काम करो, आप डेली सी पे करते थे, तो क्या सी प्लस प्लस नहीं करोगे? 4 दिन में सीख लोगे, सैलरी का सवाल होगा, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो नज़रिया मैटर करता है बस। अच्छा ये बताओ, इसमें आउटपुट इज़ हेलो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मैं बताता हूँ क्यों। आउटपुट इज़ हेलो। नाउ द रीज़न इज़ दैट both the numbers आर नॉन जीरो नंबर्स। अगर मैं नॉन जीरो वैल्यू पास कर रहा हूँ एम्परसेंट के साथ, उस केस में ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, आउटपुट ट्रू आएगा। और आउटपुट ट्रू आएगा तो इफ वाला पार्ट चल जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 एंड 2 कर दूं तब ये वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा। वाई? बिकॉज वन ऑफ द थिंग इज फॉल्स, और फॉल्स एंड ट्रू का कंडीशन विल गिव मी फॉल्स। आई विल चेंज द इनपुट्स, यहाँ पे 1 एंड 2 की बजाय 0 एंड 2 कर देता हूँ, इनफैक्ट 1 एंड 0 कर देता हूँ। आउटपुट विल बी वर्ल्ड। इज इट क्लियर? ये एंड, लॉजिकल एंड का मतलब ये है कि वो दोनों साइड पे चेक करेगा दैट अगर मेरा दोनों ट्रू है तभी उस केस में इफ वाला रन होगा, लेकिन अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो एक भी फॉल्स हुआ, अगर ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है, इन तीनों के केस में वो एल्स पे जाएगा। अगर ट्रू ट्रू है दोनों, तब वो जाएगा इफ के केस पे। समझ आया? लॉजिकल Yes, एंड का sir. यही रूल है, दिस इज सर लॉजिकल पर एंड। कंपाइलर जो है 2 को लेगा क्योंकि वो तो बाइनरी समझता है ना। वो बाइनरी बैकएंड पे अपने लिए कर लेगा कन्वर्ट, बट फॉर दिस कंडीशन जब भी आप ऐसे करके लॉजिकल एंड लगा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स समझता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रू है, राइट साइड पे ट्रू है, तो मैं पास ट्रू करूंगा इस केस में, लेकिन अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो मैं फॉल्स पास करूंगा। So, यही यही प्रॉपर्टी है इसकी। ओके, so why does it consider 0 as false? दिस इज ए बेसिक प्रोग्रामिंग रूल। बाय डिफॉल्ट द पर्सन हु हैज मेड प्रोग्रामिंग, उसने 0 को फॉल्स बोल दिया, मतलब बैकएंड पे। And every other positive integer is true. नॉन जीरो इज ट्रू, यस। तो मतलब नॉन जीरो एज इन नेगेटिव भी ट्रू होगा? अगर -1 एंड 0 लिखेंगे तो हेलो, -1 एंड -2 लिखेंगे तो हेलो प्रिंट होगा। -1 एंड -2 लिखते हैं, ठीक है। So every other number which is not 0 is considered True. as true. Yes. Yes, sir. Okay. So now let's come to our question where I was saying that we will be using bitwise and bitwise and का मिलता जुलता है इससे rule. The only thing is that we will be working on bit level. Bit level means if I say I want to do this 2 and 3, I will convert this into bit level. It is 10 in bits, ठीक है, बाइनरी में ये ऐसे होगा, and 3 को I can write it as 11, right? Now I will use that same rule but at bit level. So 11 will be 1 and 01 will be 0. The output will be 2. तो अगर मैं 2 ampersand 3 पास करता हूँ, the output will be 2 in this case. समझ आया हुआ क्या? Yes, sir. We are working at bit level now. So now अगर मैं बोलूं मुझे करना था even odd का प्रोग्राम, and in this even odd program there is one thing मुझे पता है, yes. So can you explain the bitwise and again? बिटवाइज एंड में देखो लॉजिक वही है कि अगर 1 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा। बिटवाइज एंड है ना, एक सेकेंड, आई कैन राइट इट लाइक दिस, टेबल बना लेते हैं, ए बी, बिटवाइज एंड इज सिंगल एंड, ठीक है। तो लॉजिक यही है कि अगर दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा, अदरवाइज अगर एक भी 0 आया आउटपुट विल बी 0, एंड दिस थिंग इज
काइंड ऑफ बिट लेवल कैलकुलेशंस, ठीक है। अगर आप सपोज 3 and 5 को कर रहे हो, अगर ये सॉल्व करोगे, दिस थिंग विल बी सॉल्व्ड इनटू 3 is 011, 5 is 101, and if I do bitwise AND at this point using this table, I can say it will be 001. The output should be 1. Okay, sir. ठीक है. So now I want to use this bitwise AND logic, ये वाला जो rule है, I want to use this logic to evaluate if my number जो कि मैं n में डालूंगा, जो भी user input होगा, I want to know if it is a even or odd. And if you look into the pattern of a even number, if you look at 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके कोई भी नंबर उठा के देख लो, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, हमेशा उसका LSB which means least significant bit, जिसका सबसे कम वेट है, that is always 0. कोई भी नंबर उठा के देख लो, 12 will be 1100, तो हमेशा आपको जो हमेशा आपका फर्स्ट बिट मिलेगा वो 0 ही मिलेगा इन केस वी आर डीलिंग विद इवन नंबर्स. और यही चीज अगर मैं ऑड नंबर्स में देखूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो 1 is 01, 3 is 11, 5 is 101, 7 is 111, 9 is 1001, 11 is 1011. तो हमेशा मेरा फर्स्ट बिट है वो 1 होगा LSB. Now can you tell me a logic where I will use this bitwise and I can play with some condition so that I can say कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो print even else print odd. तो अगर मैं कुछ ऐसी कंडीशन लिखूं यहाँ पे कि मेरा कोई नंबर ऐसा है, तो I would say कि if वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो print even, else print that the number is odd. So is there any condition? Yes, sir. Yes. So we can use the remainder one and divide with 10, and then if the remainder is equal to 0, then it's even. Else it's odd. आप 2 को रिमाइंडर 10 करोगे तो रिमाइंडर तो 2 ही आएगा, 0 तो नहीं आएगा. अच्छा. We have to think Sir, in n bits. mod 2 equal 0. हाँ. N mod 2 equal to 0. Yes. Mod है ये, एम्परसेंट तो नहीं है. मुझे तो एम्परसेंट यूज करना है, mod तो मैंने बोला ही नहीं. मुझे इस ब्रैकेट के अंदर mod नहीं दिखना चाहिए. यहाँ पे मुझे यही देखना बस, एम्परसेंट का साइन. अब बताओ. What if n%, if भाई, n, और भाई if परसेंट n, करना ही नहीं है. हाँ सर, वो n, n if n% 1 is equal to 0, एम्परसेंट कह रहे हो आप? yes sir, ओके. is equal to 0, तो फिर even होगा, else. गुड, यही चाहता था मैं बस. This is ampersand sign, or maybe you can also say that it is a bitwise AND sign. तो क्या मैं ये लॉजिक कर सकता हूँ? If n ampersand 1 is equal to 0, यही तो करना था. अगर मेरा ये है, सपोज 2 है, 1 0, मैंने इसको एम्परसेंड करा 1 के साथ, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 0. वही तो करा है. दिस थिंग इज वैलिड फॉर एनी इवन नंबर. 1 1 0 को करोगे 0 0 1 के साथ, तब भी आंसर 0 ही आएगा. ये बिल्कुल सही कंडीशन बताई है आपने. So this is the exact thing that I wanted to do. Is it clear? Even odd कैसे हुआ? So I will take you to the coding screen. I can write here. पहले तो n input करवाना पड़ेगा. So this is scanf का
syntax, we have given the number input of n. Now if I want to check if my n %1 is equal to 0, then the number is even, else the number is odd. ठीक है, this is the code, very small one. Let's run it. I will give the input of n, let's say 45, number is odd. Let's give a big number which is a even number, n में 2 डाल दिया, even बन गया. It is giving me even. Is this code correct? समझ आया? लॉजिक समझ में आ रहा, हुआ क्या है? If you have a doubt, you can ask. Okay. Sir, can you explain the सर logic? मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दो. देखो सिर्फ इतना हिस्सा समझाऊंगा क्योंकि यही मेन है. हमने करा क्या है, मुझे पता है कि मेरा, अगर मैं ये टेबल देखूं, इस टेबल के हिसाब से 1 1 आएगा तभी आउटपुट 1 आएगा. कोई भी और सीक्वेंस आती है, 0 1 आया, 1 0 आया या 0 0 आया, तो आउटपुट 0 ही आएगा. वो एंड वाला लॉजिक वही रहेगा कि दोनों ट्रू होने चाहिए तभी मेरा आंसर 1 आएगा. तो इफ आई से दैट वट एवर माई नंबर इज, फॉर एग्जाम्पल 7 कोई नंबर उठाया हमने 7, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1 1 1 होगा. अगर मैंने इसको m% 1 किया, करना हमेशा 1 के साथ ही है, इसका मतलब यही है m%1 का. तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, यस और नो? 1. तो अगर मेरा 0 नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 की बात करी है, अगर 0 नहीं आ रहा तो मतलब अगर 1 आ रहा है तो वो नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब वो एल्स में जाएगा और एल्स में जाके उसको ऑड प्रिंट करवा देगा 7 के केस में. अगर मेरा यही नंबर 6 होता तो 1 1 0 को अगर आप 0 0 1 के साथ एम्परसेंड करोगे या बिटवाइज एंड करोगे, आंसर विल बी 0, एंड दैट्स व्हाट इज रिटन इन दिस 7th लाइन. क्लियर? यस सर. Yes, sir. Okay. Now let's talk about the second program. Celsius into Fahrenheit and then greatest of 3 numbers using ternary. I will quickly make these two. So if I say my Celsius, अरे यार इसको मैं ऐसे यूज कर लेता, C करना बस, and it will be C. So this is the input of the Celsius value, and now I want to calculate the Fahrenheit value. So let it be float because I want to keep my value of Fahrenheit into float. कन्वर्ट करने पे पॉइंट्स आ सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. What is the formula for float value? C into 9/5 in brackets plus 32. 1.8 into C plus 32, यही फॉर्मूला है? यस और नो? Yes, sir. किसी को कुछ ब्रैकेट में तो नहीं करना? कि C plus 32 करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे तो नहीं है? No, sir. सिर्फ बाद में 32 आएगा. बस ठीक है, मल्टीप्लाई तो वो फिर उठा ही लेगा पहले. सो माय आंसर इज printf Fahrenheit is %f 0.2%f. Let's do it for different numbers. क्या कह रहा है ये? Percent F. तो परसेंट डीट का है. Hmm. -40 will be -40 only. Otherwise अगर आप सेल्सियस में सपोज 36.9 लिखोगे, it will give me the value of 98.42. इजी है? ये तो बहुत इजी था, मतलब इसमें तो कुछ लॉजिक लगा भी नहीं.
सिंपल मैथ्स था. नाउ लेट्स डिस्कस द टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इवन ऑड वाला प्रोग्राम बनाया था. जस्ट 1 सेकेंड. हाँ ठीक है, यही था. इवन ऑड का प्रोग्राम बना हुआ है. नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ए टर्नरी ऑपरेटर बेस्ड प्रोग्राम. तो मैं इतनी चीज को, जिसको मैंने इतने सारे लाइंस में लिखा है, मैं इसको एक सिंगल लाइन में लिख सकता हूँ. कैसे? आई विल डू इट लाइक दिस. n mod 1 %1 अगर है, मतलब अगर ट्रू है तो मतलब वैल्यू 1 आ रही है. तो printf odd else printf even. Let's run this code. अरे गलत हो गया. एक को 0 नहीं करना. गलत ये हुआ है कि मैंने यहाँ पे cf को चेंज नहीं किया. ये int n है. एक को 0 करना कंपलसरी नहीं है. नहीं करूँगा तो बाय डिफॉल्ट वो 1 को ले आएगा पहले. जस्ट अ सेकेंड. Okay, so if I run this code now and I give the value of n as 98, the output is even. If I give the value as 65, the value is odd. So can anyone explain me what have I done in this? देखो इसमें 3 पार्ट हैं. ये मेरा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन मार्क से पहले. क्वेश्चन मार्क से लेके कॉलन तक, दिस इज माय सेकंड पार्ट. कॉलन के बाद थर्ड पार्ट टिल सेमीकोलन. So this is part 1, this is part 2 and this is part 3. क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं, इसको हम ऑपरेंड भी बोलते हैं. ऑपरेंड का मतलब, कैन एनीवन टेल मी दैट जो मेरा प्लस ऑपरेटर है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, यूनरी है या टर्नरी है? आर यू अवेयर ऑफ यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी? यस सर. हाँ जी बताओ मेरे को, प्लस मेरा यूनरी है, बाइनरी है कि टर्नरी है? बाइनरी. सर बाइनरी. यस यस इट इज बाइनरी बिकॉज आई हैव क्योंकि दो के अंदर ही होता है ना. आई हैव 2 ऑपरेंड्स ए एंड बी. अगर मैं 2 के ऊपर काम कर रहा हूँ, अगर मेरा एक ऑपरेटर 2 चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, ए और बी, ठीक है, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं, देन इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेटर. अगर वो सिंगल ऑपरेटर पे काम कर रहा है, मतलब एक ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है, जैसे प्लस प्लस है वो सिर्फ एक के ऊपर काम कर रहा है, दिस इज माय यूनरी ऑपरेटर. ठीक है जी. सिमिलरली जो मेरा टर्नरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर मेरा ये होता है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क और कोलन 2 ऑपरेटर होते हैं और यहाँ पे मेरे 3 ऑपरेंड होते हैं. ऑपरेटर 2 हैं इन ए पेयर विच इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर. यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, उस कंडीशन को चेक करते हैं. अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलता है, अगर फॉल्स है तो ये वाला पार्ट चलता है. सेम ये वाला थर्ड वाला. सेम इट वर्क्स लाइक इफ ओनली. ठीक है, जैसे हमारा इफ था, इफ में क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू वाला पार्ट है, एल्स फॉल्स वाला पार्ट है नीचे. तो उसी चीज़ को हमने टर्नरी में ऐसे करके लिख दिया कि अगर मेरी ये चीज़ है ट्रू तो ये चला दो, अगर वो फॉल्स है कंडीशन तो सेकंड वाला आखिरी वाला पार्ट चला दो. ठीक है. यस सर. अब एक मुझे आवाज़ आई थी कि सर यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दो. वो मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के ये लिखा क्योंकि मुझे ये भी कवर करना था. ये तो ऑलरेडी हमारा हो गया कवर यहाँ पे इफ वाले में. सिर्फ ये सेकंड वाले पार्ट का मतलब ये है कि मैं
M% 1 करूंगा, सपोज 2 का किया, M%1 किया, आउटपुट 0 आया। आई टोल्ड यू अर्लियर इन द बिगिनिंग कि जो मेरा आउटपुट 0 आएगा उसको मैं फॉल्स मानूंगा। अगर मेरा नॉन जीरो वैल्यू आएगा तो उसको मैं ट्रू मानूंगा। ट्रू वन। तो वही चीज है, 0 आउटपुट आया तो मतलब ये फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स के पास जाएगा, एंड वाले पार्ट के पास, और वहां पे जाके हमने बोला कि ये इवन नंबर है जी। इजी है। यस सर। सिमिलरली अगर ये ऑड नंबर होता, सपोज 1 1 जो कि 3 होता है, ऐसे करेंगे, आंसर शुड बी 1 विच इज ट्रू, और अगर ये ट्रू है तो ये इस वाले सेक्शन को चलाएगा और ऑड प्रिंट कर देगा। इजी। तो सर अगर हम इफ वाले में इज इक्वल टू ना डालते तो वो भी चलता। दौड़ता, बस फिर आपको वो इवन ऑड को ऊपर नीचे करना पड़ जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये नहीं डाल रहे हो यहाँ पे इक्वल 0, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, तब भी दौड़ेगा, बस यहाँ पे ऑड कर दो, यहाँ पे इवन कर दो, स्टिल वर्क्स। ठीक है। कोई ठीक बड़ा है। नंबर, कोई बड़ा नंबर भी डाल सकते हो। अरे यार, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, और आ रहा है। इजी है। यस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोड। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर हो, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर तो रहता है अभी, इवन ऑड के साथ ही खेल रहे थे। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 खुद कर लोगे कि बना दूं फटाफट? हाँ जी बताओ। क्या कर लेंगे? चलो ठीक है, अपने आप करना, अगर नहीं होगा तो मैं अगली लैब में बता दूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द नंबर। ये वाला प्रोग्राम करते हैं, 4th नंबर वाला। ठीक है, 4th नंबर में क्या है, वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए नंबर। जैसे 123 इनपुट गया तो 3 आउटपुट आना चाहिए। हाउ कैन वी मेक दिस? बताओ लॉजिक क्या होगा। कोई भी नंबर है, सपोज ये, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10 करूं तो ये 123 बन जाएगा। फिर से डिवाइड बाय 10 करूं, वो 12 बन जाएगा। फिर से डिवाइड बाय 10 करूं, 1 बन जाएगा। फिर से डिवाइड बाय 10 करूं, 0 बन जाएगा। जब तक वो मेरा नंबर 0 ना बन जाए तब तक डिवाइड बाय 10 करते जाओ, और जितनी बार नंबर डिवाइड बाय 10 करोगे उतनी बार आप अपने काउंटर को प्लस करते जाओ। इक्वल 0 लो, काउंट प्लस प्लस, तो काउंट यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। जब 0 हुआ बाहर आया और काउंट को प्रिंट करवा दिया, इट विल बी 4। आसान है। यस सर। सर इंट में ही करेंगे ना? हाँ देखो, यस सर। मैंने इंट n ले लिया था। नाउ वाइल, अब लूप आपका अभी शुरू नहीं हुआ होगा क्लास में, राइट? लूप तो नहीं करवाया अभी क्लास में? नो हाँ, नो Yes, सर। sir. थोड़ा सा करवा दी। थोड़ा सा स्टार्ट किया होगा, है ना? ओके, सो लेट मी कवर द लूप्स ऑल्सो। फटाफट से करवाता हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन समझने के लायक बन जाओ। इंट काउंट इक्वल टू 0, n इक्वल टू n/10, हर बार डिवाइड करना है, और जितनी बार करोगे हर बार काउंट को प्लस प्लस कर दो, और बाहर आके प्रिंट काउंट द लेंथ।
मैं बताता हूँ ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है, ये वाइल लूप क्या होता है। लूप्स आ गया ये, सपोज कोई भी नंबर है, ठीक है, कितने डेट हैं, 3 3 6 2 8, आउटपुट इज 8। ये ठीक है कोड। अब देखो मैं आपको फटाफट से लूप करवाता हूँ। सो इफ आई टॉक अबाउट द लूप्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। और लूप्स क्यों काम करने आने चाहिए, बिकॉज लेट्स से यू वांट टू प्रिंट योर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 1000, तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे, कैन एनीवन टेल मी, बेस्ड ऑन योर करंट नॉलेज, हाउ विल यू प्रिंट काउंटिंग ऑफ 1 to 1000? यस, बेस्ड ऑन योर करंट नॉलेज बोला मैंने, जो भी So आपको आता है। So while loop. आप प्रिंट एफ करोगे, पहले 1 डाल दोगे, फिर 2 डाल दोगे, फिर ऐसे प्रिंट करके 3 डाल दोगे, और ऐसे करके 1000 टाइम्स प्रिंट एफ लिखोगे। यस और नो? सर लूप सिखा दिया है। अच्छा, लूप्स में फॉर लूप करवा दिया आपको? yes sir, सर for तीन हो while गए। while तीनों का थोड़ा थोड़ा बताया है। चलो एक सर बार मैं भी, बट एक सर बार मैं इतना नहीं बताता अच्छे हूँ। से आया मतलब। वो तो ऑब्वियसली जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा, बट एक बार मैं भी करवा देता हूँ, सुनो। काफ़ी आसान है, करेंगे बात फॉर की भी, वाइल की भी, और डू वाइल की भी। तीनों की करेंगे। उससे पहले छोटे छोटे 4 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज इनिशियलाइज। कोई भी नंबर हो उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, तभी उसको हम लूप में भेज सकते हैं। फिर हम चेक करेंगे कोई कंडीशन कि क्या मेरी वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो कुछ टास्क करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू हुई, हाँ, अगर ये ट्रू है तो टास्क करवा लो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट्स। जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई विल टर्मिनेट माई लूप। और अगर टास्क किया है तो उसके बाद एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आप कर सकते हो, विच विल कंट्रोल माई लूप के कब तक जाना है, कहाँ तक जाना है। फटाफट से देखते हैं इन चारों का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1 से 1000 नहीं, चलो 1 से 10 प्रिंट करवाना था, तो 10 बार प्रिंट एफ नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा, पर करूंगा ऐसे। इंट आई किया, इंटेंशन बता दिया कि मैं आई को आगे जाके यूज़ करूंगा, तो आई हैव डन डिक्लेरेशन। वैल्यू नहीं दिया अभी, ओनली डिक्लेयर किया है। फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और अगर ये है कंडीशन ट्रू तो अंदर आओ और आई को प्रिंट कर दो। यहाँ पे एक न्यू लाइन कर लेते हैं ताकि वो हर बार अगली लाइन में जाएगा। यहाँ पे दिस इज माई इनिशियलाइजेशन, दिस इज माई कंडीशन, दिस इज माई टास्क, एंड दिस इज माई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कम करना है ज़्यादा करना है वो वहाँ पे हो जाएगा चौथे नंबर पे। और इसमें लूप चलाते हुए सबसे पहले मेरा 1 एक बार रन होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू हुई, अगर ट्रू हुई तो वो 3 को करेगा, 3 के बाद 4 को करेगा, और 4 वापस इसको 2 के पास भेज देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप विल टर्मिनेट। समझो इसको क्या लिखा मैंने। मैंने क्या करना है, एक सेकेंड। सो इफ आई हैव आई इक्वल टू 1, ठीक है, इनिशियली मैंने आई 1 किया, चेक किया मेरा 1 लेस देन इक्वल 10 है, ट्रू है, अंदर गया, नंबर 3 वाला टास्क किया, प्रिंट किया 1, वापस गया ऊपर, आई प्लस प्लस किया, आई को 2 किया, यहाँ गया, 2 लेस देन इक्वल 10 ट्रू है, छोटा है 2 10 से, अंदर आए, फिर से प्रिंट करवाया 2, फिर ऊपर गया 3 हुआ, 3 लेस देन इक्वल 10 ट्रू है, 3 प्रिंट हुआ, ऐसे करके 10 तक प्रिंट हो जाएगा। 10 प्रिंट होने के बाद ऊपर जाएगा 11 कर लेगा ये यहाँ से, और यहाँ पे जाकर चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल 10, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जब भी मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सीधा इसको बाहर फेंक देगी।
ठीक है जी। लूप टर्मिनेट्स व्हेन माय कंडीशन इज फॉल्स। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये 2 3 4 यहाँ पे घूमता रहेगा। समझ आया हो क्या रहा है? यस सर। अभी भी डाउट है तो पूछ लो, वैसे तो बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है। अगर सर तो जो वो 11 है प्रिंट होगा? नहीं, 11 क्यों प्रिंट होगा? जब मेरा 10 प्रिंट हुआ, सपोज यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, इसने भेजा 10 प्रिंट करवा दिया, ऊपर गया, इसने 11 किया आई को, चेक हुआ 11 लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स हो जाएगा ये। जब फॉल्स ही हो गया वो 3 तक पहुंचेगा नहीं, 2 के बाद सीधा बाहर, आउट ऑफ द लूप, 11 प्रिंट नहीं होगा। सर इसको कौन सा लूप कहते हैं? फॉर लूप। यस सर। दिस इज फॉर लूप। ठीक है, ओके। सो फॉर लूप इज कंप्लीट। इसी चीज को अगर मुझे वाइल लूप में करना है, बट विल आई डू? जब 1 2 3 4 की समझ आ गई है तो वाइल लूप भी एक सेकंड का खेल है। आई विल इनिशियलाइज, I will put the condition, I will do the task, and then I will do the increment here itself. I will terminate the loop, मतलब वो अपने आप देख लेगा। अब यहाँ पे just a second, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मेरा 1 पहले हो गया, यहाँ पे मेरा 2 हो रहा है, मेरा ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, उसके बाद वापस 2 हुआ। जब तक मेरा 2 ट्रू है तब तक वो अंदर आएगा, फॉल्स हुआ बाहर। समझ आया? सिंपल है। सर फॉर और सेम है, वाइल में बस फर्क क्या है? फॉर्मेट डिफरेंट है। डिफरेंस क्या रह गया? बस फॉर्मेट ही अलग है, काम तो दोनों सेम कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज है वाइल लूप में ना, यू कैन कंबाइन दीज 2 स्टेप्स। कैसे? अगर आप इसको काट दो और यहाँ पे लिख दो प्लस प्लस, अगर आपने यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा तो आप 3 और 4 को इकट्ठा कर दोगे एक ही स्टेप पे। प्रिंट तब भी आई होगा पर अगली बार आते आते प्लस होके जाएगा यहाँ से। समझ आया? ओके। सर हम्म सर अगर हम आई को 0 वैल्यू दे दें और हम पर प्लस प्लस आई लिख दें, आई प्लस प्लस की जगह, तो भी प्रिंट हो जाएगा, मतलब तो भी चल जाएगी? हाँ, ठीक है। करके देखना। ठीक है, ये गलती मत करना कि 10 अंदर, 10 के नाम पे अंदर आए और यहाँ पे आके आपने प्लस प्लस आई करके 11 प्रिंट करवा दिया, क्योंकि वो पहले ही प्लस प्लस कर देगा, तो वो 11 प्रिंट कर देगा फिर। मतलब इट डिपेंड्स कि आप प्रिंट क्या करवाना चाहते हो, अदरवाइज चल जाएगा जो आपने बोला है। ओके सर। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डू वाइल। डू वाइल भी इसी का भाई है, पर इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। सपोज मैंने यहाँ पे 101 कर दिया होता आई को, ठीक है, तो क्या ये वाइल लूप चलता? क्या ये स्टेप्स होते? यस और नो? नो No, सर। No, sir. डू में होंगे। अगर मैंने आई कोड 101 करा, डू का काम है काम करवाना, पहले ही करवा देता वो, प्रिंट एफ %d आई प्लस प्लस। एक बार चलने के बाद फिर वो कंडीशन चेक करता है कि क्या ये मेरा लेस देन इक्वल टू 10 है भी कि नहीं। फॉल्स है कंडीशन, पर आई इक्वल टू 101 था, अंदर आया, प्रिंट करवाया, 102 किया और आके चेक किया क्या 102 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, चलो बाहर। पर यहाँ पे एक नुकसान ये होगा कि इवन व्हेन कंडीशन वाज नॉट ट्रू इट रैन वंस। इधर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, एक बार भी गलती नहीं करेगा। समझ आ गया हुआ क्या है?
सर Yes, sir. आउटकम में हमें कुछ मिलेगा या नहीं? अरे मिलेगा यार, इधर तो मिल ही रहा है, इधर नहीं मिलेगा। इधर वाली साइड नो आउटपुट, वाई नहीं, इधर वाली साइड बल्कि एक एक बार आउटपुट आएगा, बिकॉज आपने डू करवा लिया और चेकिंग आपने बाद में करी है। पर अगर आपने यहाँ पे 101 किया था और इधर वाइल की साइड से आ रहे हो, फिर आपको एक भी बार आउटपुट नहीं मिलेगा इस केस में। ठीक है, इधर नो आउटपुट, उधर एक बार एटलीस्ट वन आउटपुट। ठीक है, समझ आया? अगर आपको ये लूप समझ में आ गए हैं, दो तीन छोटे छोटे, नाउ यू कैन डिकोड दिस कोड। ठीक है, किया क्या था, वी वांटेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए नंबर, एन इनपुट लिया स्कैन करवा के, काउंट ले लिया 0। जब भी नंबर को डिवाइड बाय 10 करूंगा तब मैं काउंट को प्लस प्लस करूंगा। इनिशियली मेरा जो काउंटर था 0 था, पर जब पहली बार डिवाइड बाय 10 किया तो इसको 1 कर दिया। सपोज 123 था, तो 123 डिवाइड बाय 10, काउंटर 1। अगली बार 12 को डिवाइड बाय 10 किया, काउंटर 2। अगली बार 1 को डिवाइड बाय 10 किया, काउंटर 3। अगली बार 0 आ गया तो डिवाइड बाय 10 होगा ही नहीं, इसलिए वैसे भी जब 0 ही आ गया तो वो कंडीशन चेक करेगा कि मेरा n इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स है, तो वो लूप से बाहर फेंक देगा हमें, और हम एंड में आके प्रिंट करवा देंगे कि हमारी, मतलब 12th लाइन में हमने प्रिंट करवा दिया कि हमारी लेंथ क्या है। समझो इस कोड को, अगर नहीं आ रहा तो अभी पूछ लो। क्लियर? सर फिर वो 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट करेगा कि बस फाइनल वाली ऑप्शन? इसमें तो कुछ भी नहीं कर रहा, इसमें तो काउंट, हम ये तो प्रोग्राम ही अलग है भाई, इसमें तो हम यस काउंट सर, कर रहे इसमें हैं। ही, सर इसमें ही कह रहा हूँ। इसमें कह रहे हो, इसमें तो कुछ भी प्रिंट नहीं करना है यार, इसमें तो सिर्फ एंड में आके काउंटर का तो फाइनल नंबर बताना है। जब इस लूप से बाहर निकल गए फिर प्रिंटिंग कर रहे हैं, इसके अंदर या इससे पहले तो हमने कहीं भी प्रिंटिंग नहीं करी। जब तक प्रिंटिंग नहीं होएगी तब तक कोई चीज़ यस सर। सामने नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं। सपोज मेरा नंबर था 1214, ये नंबर है n। तो ये काम कैसे करेगा वो बताता हूँ। इनिशियली मेरा काउंटर 0 है, ठीक है, ये 0 है, इनिशियलाइज यहाँ पे हमने कर दिया, इनिशियलाइज। तो अब मैंने बोला वाइल माई n इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनिशियलाइज को कम उसके साथ कंफ्यूज मत कर लेना जो हम वहाँ पे i इक्वल टू 0 वाई लेस देन करते हैं। इनिशियलाइज का मतलब है हम सिर्फ यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, अदरवाइज क्योंकि मेरे वाइल में n यूज हो रहा है तो n को इनिशियलाइज हमने यहाँ पे कर लिया था स्कैन के टाइम पे। n का जो हमने यहाँ पे यूज करना है उसको इनिशियलाइज हमने यहाँ स्कैन के थ्रू करा सर है। काउंट इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है? हाँ, तभी तो मैं काउंट करूंगा कि लेंथ कितनी है। अब देखो, अगर मेरे पास नंबर है 1214, मैंने बोला कि पहली बार मैं अंदर आया, मेरा ऑब्वियसली 1214 तो 0 से बड़ा है। उसने क्या किया, 1214 को डिवाइड बाय 10 किया और इसका आउटपुट जो 121 आया उसको डाल दिया n में। ठीक है, n अपडेट हो गया। लेकिन क्योंकि हमने उसको डिवाइड बाय 10 किया तो मैंने क्या किया, मैंने काउंट को प्लस प्लस कर दिया। नाउ माई काउंट इज 0 + 1। वापस गया ऊपर, मेरा n 121 था, ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है। अंदर आया, 121 डिवाइड बाय 10 किया, 12 रह गया, और काउंट को 1 + 1 किया, 2 कर दिया। 12 इज ग्रेटर देन 0, अंदर आया, डिवाइड बाय 10 किया, 1 हुआ, काउंट 2 + 1 3। 1 ग्रेटर देन 0, अंदर आया, 1 डिवाइड बाय 10, 0 आया, काउंट 3 + 1 4। पर नाउ दोबारा चेक किया, 0 ग्रेटर देन 0, ये चीज़ फॉल्स है। वाइल लूप से बाहर बाहर निकल के काउंट की वैल्यू लेटेस्ट वाली 4 थी, 4 को यहाँ भेजो, प्रिंट करवा दो। इजी है। यस सर। नाउ कैन वी डू द सम ऑफ डिजिट्स?
Yes, sir. सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा n इनपुट है, सम करना है तो हम सम में नंबर सेव करना चाहते हैं, int सम कर लेते हैं। while my number is greater than 0, मुझे सिर्फ ये करना है छोटा सा काम, n को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि नंबर तो छोटा करेंगे तभी हमें 1 by 1 रिमाइंडर मिलेगा। सम इक्वल टू सम प्लस n mod 10। So, यस, अगर हम लोग n mod 10 को एक सेपरेट वेरिएबल लाइक कर असाइन सकते हो, कर सकते हो। so, इफ यू डू इंट रिमाइंडर अलग से और रिमाइंडर में यू डू n mod 10 और सम प्लस रिमाइंडर कर दो, चलेगा। yes, sir. ये कोड क्लियर है, इजी है। करा क्या बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 123 एंड 123 को मैं यहाँ पे आया, मैंने चेक किया 123 इज ग्रेटर देन 0। चलो जी ट्रू है, अंदर आ जाओ। सम इक्वल टू, सम मेरा इनिशियली 0 था तो 0 प्लस 123 mod 10 कितना आएगा? 12। 3 आएगा यार। 123 मॉड है, ये डिवाइड नहीं है। 123 mod 3 का मतलब, Yes, mod 10 sir. का मतलब ये है, डिवाइड करोगे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, रिमाइंडर 3, तो ये रिमाइंडर होता है मॉड। ठीक है, तो फिर हमने किया n इक्वल टू 1/10, तो 123 को जी डिवाइड बाई 10 कर दिया, मेरा 12 रह गया। 12 ग्रेटर देन 0 है, यस। सम इक्वल टू 3 प्लस 12 mod 10 विच इज 2। ठीक है, तो सम हो गया 5। 12 को डिवाइड किया 10 के साथ, रह गया 1। नाउ 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। सम इक्वल टू 5 प्लस 1 mod 10, 1 ही होता है। सम इज 6। कर करा के बाहर आते आते सम मेरा 6 प्रिंट हो जाएगा। इजी है। Yes, sir. Okay, so now what? Now let's do the reverse of a number. Sum of digits हो गया, count of digits हो गया। Now let's do reverse of a number. मुझे प्रिंट करवाना है कि मेरा जो रिवर्स है, रिवर्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज whatever the final answer is। तो इसमें मुझे ओरिजिनल नंबर भी रखना है सेव, और फाइनल वाला रिवर्स वाला नंबर भी रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंट rev इक्वल टू n कर देंगे। मैं रिवर्स को डिलीट करूँगा, हर बार डिस्ट्रॉय करूँगा जब तक मेरा रिवर्स 0 नहीं हो जाता। नॉट रिवर्स, लेट इट बी m। जब तक मेरा m एक डुप्लीकेट नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक मुझे रिवर्स में नंबर अपना कैलकुलेट करना था। तो लेट इट बी इंट रिवर्स इक्वल टू 0। इनिशियली मैंने रिवर्स को इक्वल टू 0 कर दिया, सो द फॉर्मूला विल बी रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10। समझाऊंगा कैसे किया, आई थिंक हो जाएगा ऐसे। देना चाहिए। So if my number is 1 2 3 4, output is 4 3 2 1। ठीक है, can anyone explain me what have I done? What is done here? Can you explain me? समझो इसको, देखो क्या हो रहा है। मुझे रिवर्स करना था, नंबर था 1 2 3 4 इनपुट में, आउटपुट चाहिए 4 3 2 1। वो कैसे आएगी? अगर मैं हर बार इस नंबर को मॉड करूं, मॉड करने पे 4 आया, इस 4 को
कहाँ पे सेव करना है, एक नंबर लिया मैंने रिवर्स इक्वल टू 0, इनिशियली 0 रख लिया। जब भी मेरा रिवर्स कोई साथ मैंने डील करना, मैं रिवर्स को मल्टीप्लाई 10 करूंगा और उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर दूंगा। तो 0 + 4 = 4। अगली बार जब वो नंबर आएगा तो 123 होके आएगा, क्योंकि हमने डिवाइड बाय 10 भी करा है। 123 mod 10 = 3। लेकिन जब मैंने अब ऐड करना है रिवर्स में, सो इट शुड बी रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, मतलब 4 × 10 + 3 विच विल बी 43। अगली बार जब वो आएगा तो वो 12 होके आएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 10 हम हर बार कर रहे थे। सो 12 mod 10 विल बी इक्वल टू 2। तो मतलब मेरा रिवर्स विल बी इक्वल टू करंट नंबर ऑफ रिवर्स मल्टीप्लाई 10 + 2 विच इज 432। सिमिलरली ऐसे करके एंड में आते आते 4321 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर विच इज रिटन हियर। समझ आया? Yes, Yes. sir. So a question है. यस। So like in case supposingly in a question we are given that we need to just print the reverse of a number. So like if we put the print statement inside a loop and we just do the mod wala and we print it without like going to a new line, we'll still get the reverse of the number. So like अगर हम वो करेंगे तो so like we are not told to like actually find or something, just print करना है। तो अगर just print करना है तो वो भी कर सकते नहीं, जो आप कह रहे हो ना वो रिवर्स ऑफ डिजिट्स, आप रिवर्स ऑफ ए नंबर प्रिंट करवा रहे हो, पर उसको रिवर्स ऑफ ए नंबर को कहीं सेव नहीं कर रहे कल को। Yes, so वही that's what I'm saying, अगर store हाँ, नहीं करना जो है आप just कह रहे print हो करना जो है आप कह तो रहे हो वैसे कर सकते हैं, पर उसका फायदा नहीं है कोई, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, सपोज रिवर्स किया या लेंथ ऑफ नंबर निकाला, तो इसको इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम आगे कल को उसको यूज कर पाए। ठीक है, yes so जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, पर वो उसमें शायद हाफ मार्क्स ही मिलेंगे आपको अगर आप वैसे करोगे। ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग जो आगे यूज हो पाए। अब yes यहाँ so पे मैंने रिवर्स सेव कर लिया, REB को अब मैं आगे किसी कोड में भी मिक्स कर सकता हूँ अगर इसी कोड को एक्सटेंड करना चाहूँ। ठीक है, yes so हाँ जी। किसी को कोई डाउट है इस कोड में अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल मूव टू द आर्मस्ट्रांग नंबर नाउ। वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी कैन डिस्कस द आर्मस्ट्रांग नंबर नाउ। Yes, sir. चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द आर्मस्ट्रांग नंबर एंड हाउ इट वर्क्स। कभी सुना है किसी ने आर्मस्ट्रांग नंबर के बारे में? yes so Yes, sir. हाँ जी, बताओ क्या होता है? that is the sum of the cube of the digits. रॉन्ग। यू आर सेइंग कि मेरा नंबर 153 है, आई विल डू द क्यूब ऑफ ए नंबर, 153 ही आएगा, और अगर ये सम इसके बराबर आ जाए ओरिजिनल नंबर के, ये आर्मस्ट्रांग है। फॉर दिस पर्टिकुलर केस दिस इज ट्रू, बट अगर आई से नंबर इज 1 2 3 4 4 digit number, then if I do 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube, this formula is wrong because लेंथ मेरी 4 है तो मैं पावर भी 4 करूंगा। So you knew but partially. In this case we have to add the powers of a number, power of the dates of a number, but वो पावर उतनी होगी जितना नंबर का लेंथ है। ओके, सो दिस इज द आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर सिंगल डेट होगा, सपोज 9, 9 का पावर 1 करेंगे और 9 ही आएगा, तो 9 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, ये ट्रू है। 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, 370 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, 371 इज आर्मस्ट्रांग नंबर। ऐसे करके टोटल 10,000 तक भी अगर आप चेक करोगे तो गिन के 16 या 17 आर्मस्ट्रांग नंबर हैं जिनकी ये कंडीशन ट्रू होती है दैट यू डू द समेशन ऑफ द डिजिट्स पर रेज टू पावर जितना उसका लेंथ है। सो वी हैव टू मेक दिस कोड। बताओ कैसे करेंगे? अब क्योंकि इस कोड में वी हैव टू यूज द डिजिट्स आल्सो, वी हैव टू फाइंड द लेंथ आल्सो, वी हैव टू यूज सम ऑफ डिजिट्स आल्सो, इसीलिए वो सारी हमने ऊपर इतना ज़्यादा 3-4 अलग अलग तरह के कोड सीखे थे। नाउ यू हैव टू मेक दिस कोड that how will I find the Armstrong of an that if my Armstrong number है कि नहीं है। there are two versions that we need to do. The first version is to print if the number is Armstrong or not, yes or no print करवाना है बस।
Second part of the same question is print all the Armstrong numbers from 1 to Z. Z can be even 10 billion. ठीक है, तो मुझे सारे नंबर ढूंढने हैं जितने भी आर्मस्ट्रांग होंगे. लेट्स मेक दिस टू प्रोग्राम्स क्विकली. इसमें आर्मस्ट्रांग में फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे बताओ मेरे को, क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या स्टेप्स होंगे बताओ. So a question है यस. that do we use like 2 loops for Armstrong or like a single loop only? ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, मतलब ऐसे मेरे को याद भी नहीं है, बना के बता दूंगा. ठीक है. मतलब ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता है, ऐसे रट्टा मत मारो कभी, नहीं लॉजिक के साथ मतलब चलेंगे. ठीक है, लॉजिकली अगर हम 2 लूप यूज करें तो कि एक नहीं ही करना ऐसे चाहिए. ऐसे मेरे को याद नहीं है, मतलब सही बताऊं तो मेरे को बना के पता चलता है. ओके सर. सो देखो, अब सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए नंबर. ठीक है, लेंथ ऑफ ए नंबर पता कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 123 था या 153 था, तो इन दोनों का आउटपुट 3 आना चाहिए, क्योंकि मुझे इसी को पावर में यूज करना है बाद में. अगर 1234 या 4321 नंबर है तो इसमें आंसर 4 आना चाहिए, क्योंकि मेरी उसमें पावर 4 होगी हर बार. तो एक तो मेरे को लेंथ वाला प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो एक लूप तो यहाँ भी लग ही जाएगा. तो मैं लूप की बात करूँ तो सेकेंड स्टेप विल बी that I will have to do the summation of the digits, let's say 1 plus 2 plus 3, but along with their powers. तो ये भी एक लूप के साथ ही चलेगा, क्योंकि आप एक लूप चलाओगे जहाँ पे आप डिजिट्स को सेग्रीगेट करोगे फिर उसको सम करोगे, तो ये भी एक लूप आ जाएगा. हाँ, 2 लूप ही चलेंगे. आप पूछ रहे थे ना कितने हैं, तो 2 लूप ही होंगे. बिकॉज इन द Yes. फर्स्ट लूप वी विल बी चेकिंग द लेंथ ऑफ द नंबर, सेकेंड लूप में वी विल बी डूइंग द समेशन, और उसके बाद तो हम इफ सम इक्वल टू ओरिजिनल नंबर है तो येस आर्मस्ट्रॉन्ग एल्स नो आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है, अब इसको बनाते हैं. एंड फॉर दिस कोड आई नो दैट आई वांट टू यूज द पावर फंक्शन आल्सो, बिकॉज अगर मुझे ऐसा कुछ पावर निकालना है तो पावर 3 है या 4, एक पावर फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग में. वी कैन डू इट लाइक दिस, n comma m where n raised per m is the meaning of this power function. हो जाएगा. कैन वी मेक दिस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नाउ क्विकली. Yes sir. ओके, लेट्स डू इट नाउ. फटाफट से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने n चेक करना है कि ये मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो मैं सबसे पहले लेंथ ऑफ द नंबर निकालूंगा. लेंथ ऑफ नंबर, एंड आई विल सेव इट as let's say power variable, and save in power variable, बिकॉज मुझे पता है वो पावर मैंने यूज करनी है बाद में. तो व्हाट आई विल डू इज int पावर इक्वल टू 0. मैं इसको काउंट भी रख सकता था, पर मैं जानबूझ के पावर रख रहा हूँ, बिकॉज आई नो मुझे बाद में वो पावर में यूज करना है, तो याद रहेगा. सो लेट्स मेक ए डुप्लीकेट नंबर int m इक्वल टू n, क्योंकि ओरिजिनल नंबर सेव करके रखना पड़ेगा, 2 बार यूज करना है. सो इट विल बी डुप्लीकेट ऐसे. नाउ इफ नहीं, while my m is greater than 0, क्या करेंगे अब यहाँ पे, जल्दी बताओ. So m is equal to m by 10 and then power plus plus. Yes, good. यहाँ पे I know now that my length of the number is this power variable. ठीक है. Now what I want to do is I want to do the sum of power digits. तो अब ये कैसे करेंगे. इनिशियली मुझे दोबारा से m इक्वल टू n करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिजिट्स तभी मिलेंगे while my m is greater than 0. What I need to do, बताओ. Can I say that क्योंकि मुझे सम के साथ खेलना है, I can make a variable sum equal to 0, and I can do the sum equal to sum plus, या फिर sum plus equal to, सम में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, डिजिट का मॉड करके विद पावर. सो पावर
पावर के फंक्शन के लिए आई नीड math.h. सो आई नीड पावर फंक्शन. उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है m mod 10, जो भी उसका डिजिट आएगा रेज टू पावर उसमें सम में ऐड कर देंगे और m इक्वल टू m/10 कर देंगे. हर बार डिवाइड बाई 10 होता जाएगा और रेज टू पावर करके वो सम में ऐड करता जाएगा. उसके बाद वी विल मेक द कोड फॉर चेकिंग इफ इट इज आर्मस्ट्रांग और नॉट. If my sum is equal to real number n, then print yes, else print no. हाँ जी, any doubt in this code? स्टेप वाइज किया है. सबसे पहले वी फाउंड द लेंथ ऑफ ए नंबर, उसको हमने एक वेरिएबल पावर में सेव कर लिया. देन आई ट्राई टू डू द सम ऑफ द डिजिट्स. अगर इस पूरे कोड में किसी को कन्फ्यूजन होगी तो दैट विल बी अराउंड द लाइन नंबर 22. आई विल एक्सप्लेन दिस. करा कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, देख के घबराना नहीं है. सम 0 है इनिशियली, लेट्स से 153 था, 153 आया, ग्रेटर देन 0 है. सम में सम प्लस पावर फंक्शन m mod 10 will give me 3. yes or no? Yes, sir. और पावर में तो 3 होगा ही क्योंकि 3 डिजिट नंबर था. तो सम 0 था, 3 इस पर 3 इज 27. तो सम में 27 आ गया ऑन फर्स्ट इंस्टांस. फिर m इक्वल m बाई 10 किया, 15 रह गया. नो 15 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू. सम इक्वल टू 27 में ऐड करेंगे, क्या करेंगे 5,3. 5 क्यूब इज 125, 125 प्लस 27 इज 152. तो सम में 152 आ गया. नाउ डिवाइड बाई 10 करके 1 इज ग्रेटर देन 0. सम इक्वल टू 152 प्लस 1 क्यूब 153. उसके बाद वो डिवाइड करेगा 10 के साथ, 1 विल बी 0. ऐसे डिवाइड बाई 10 करके 0 हो जाएगा. एंड 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा. बाहर आके चेक करेगा कि मेरा 153 है, हाँ है तो ट्रू. लो यस आर्मस्ट्रांग. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now how can I convert this code into सबसे पहले तो I will share this code link with you. Just a second. This is the code for Armstrong or not. Yes. Okay. Sharing the link. You can use this code on your end. Now next program I want to make is to print all the Armstrong numbers. Print Armstrong numbers between 1 and z. So what I can do is I will have to get the input of z. फिर मैं क्या करूँगा, मैं while my z is greater than 0. ये तो उल्टी गिनती कर देगा. चलो shouldn't use चलो दो. for loop? It can be for loop, it can be while loop, doesn't matter. So what I will do is I will take these values. पहले मैं इनको ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ. पावर m और वेरिएबल है जो नीचे यूज किए. सम है एक. ओके, सम ऑल्सो.
So what I can do is, एक्सक्यूज मी सर, hmm, सर अगर हम डू वाइल करते हैं सर, वो तो हमेशा ही हमें गलत दे देगा। हाँ तो डू वाइल करना नहीं ना सर मतलब फिर उसका यूज कहाँ पे है? पढ़ाई में, पता होना चाहिए कि यूज नहीं करना, क्योंकि वो आपको एक ना एक बार तो करके देगा। अगर आपका कंडीशन गलत है तो एटलीस्ट फिर भी वो एक टास्क करके देगा आपको। तो उससे अच्छा है कि उसको यूज ही मत करो, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। यस सर, हाँ जी। बस एक मतलब सी प्रोग्रामिंग में ये होता है डू वाइल, पता होना चाहिए। ठीक है। सो आई विल प्रिंट द पावर, जो भी मेरा नंबर है। लेट्स डू वन थिंग, मैं एक इंट n ले लेता हूँ और मैं n इक्वल टू 1 कर लेता हूँ इनिशियली, एंड लेट इट बी टिल माई n इज लेस देन इक्वल टू z। फिर वो 1 से चलेगा, सही हो जाएगा। इनिशियली पावर 0 है, m इक्वल टू n किया, while my m is greater than 0, इसकी लेंथ पता चल गई यहाँ पे। जस्ट सेकेंड, लेंथ ऑफ द नंबर यहाँ पे पता चला। अब क्या करना है, सम करना है, तो सम ऑफ पावर्ड वाला आ जाएगा। इसके बाद m इक्वल टू n एंड सम इक्वल टू 0, एंटर नहीं करना, ऊपर कर चुके। so this is my sum। कंडीशन वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। नाउ आई जस्ट वांट टू डू वन थिंग, कि अगर वो मेरा, प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, कि अगर मेरा सम इक्वल टू ओरिजिनल नंबर n है तो वो नंबर प्रिंट हो जाए, दैट्स इट। परसेंटेज स्पेस, चलो न्यू लाइन कर लेते हैं। whatever my number will be, it will be printed। अगर नहीं है तो वो प्रिंट नहीं होगा। और जाते जाते n प्लस प्लस, ठीक है। आई थिंक द कोड इज कंप्लीट, लेट्स रन इट। फॉर एग्जाम्पल I give the input 1000, so these are the total 13 numbers which are Armstrong till 1000। ठीक है। If I write the input as 10,000, let's see कितने हैं तब तक। 10,000 तक करेंगे तब भी सिर्फ 3 नंबर ही ऐड हुए हैं आर्मस्ट्रॉन्ग में। These are all Armstrong numbers, रेस्ट पर 3, रेस्ट पर 2, रेस्ट पर 1, रेस्ट पर 4, जो भी बनता है पावर करके सम करके। These are the different numbers which are Armstrong till 10,000। Now I also told you that हम 1 लाख तक भी कर सकते हैं, तो let's give the input as 1 लाख। 1 से 1 लाख तक के देखते हैं कितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं। रन, give the input of 1 लाख। बहुत कम नंबर्स हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, मतलब 1 से लेके 1 लाख तक टोटल 19 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, दैट्स इट। हो जाएगा ये कोड अब? हाँ जी, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। इजी है, वाइल लूप हमें चलाना आता है, और बाकी तो नॉर्मल काउंटिंग ही तो है, 1 से लेके Z तक जा रहे हैं, दैट्स इट। जो ये n++ की है वो वही है कि हर बार जैसे पहले 1 आया फिर 2 आया, तो ऐसे करके नंबर बढ़ाते जाओ। अगर है वो क्वालिफाई कर रहा है तो उसको प्रिंट भी करवा दो, दैट्स इट। एनी डाउट इन दिस कोड? हाँ जी, क्विक सर नेक्स्ट। ये हाँ बोलो। सर ये भी एक बार शेयर कर दो। हाँ हाँ, वो तो मैंने करना ही है, अगर डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, ओके।
ID on. $1 lakh. Run. The output is the 19 numbers. ठीक है. This is the code. Sharing now. Now coming to the request that came in the beginning, prime numbers. So now we will talk about, कहाँ गया? ये रहा, prime number, program number 8. We will be finding if the number is prime or not. हाँ जी, कैसे prime number calculate करते हैं, जल्दी से बताओ. How can we calculate if the number is prime or not? If a number is divisible by a number other than the number itself and 1, then it is a non-prime number, else it is prime. It means if my number is divisible by only 2 factors, 1 and the number itself, तभी वो prime है, वरना नहीं है. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्या कोड को करेंगे इसका बताओ. देखो सबसे बेसिक है, आप एक लूप चलाओ, n को डिवाइड करना शुरू कर दो 2 से, 3 से, 4 टिल n-1. सबके साथ डिवाइड करके देख लो. देखो 1 तो होगा ही ना, ठीक है, 1 तो है ही है. एंड सिर्फ अगर 1 इनपुट होगा तो इट इज नॉट प्राइम. ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप 0 या 1 इनपुट दे रहे हो तो वो नॉट प्राइम प्रिंट करवा दोगे, वहीं पे खत्म. लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा n दोगे तो आप 2 से लेके n-1 तक जा सकते हो और देख लो कि क्या मेरा इनमें से कोई भी एक फैक्टर आ रहा है. अगर कहीं पे फैक्टर आ गया तो वो प्राइम नहीं है, अगर किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम है. तो दिस इज माई मेथड 1, जो कि सबसे बेसिक है, सबसे यूजलेस मेथड है. ठीक है, इससे स्मार्ट मेथड ये है that if I go in method 2, if I go from 2 till n/2, क्योंकि वैसे भी मुझे पता है कि अगर मेरा 100 है तो उसके फैक्टर्स मैक्सिमम, सबसे बड़ा फैक्टर उसका 50 है, 50 से ऊपर कोई फैक्टर होता नहीं है. तो मैं क्या करूं, मैं 2 से लेके 50 तक डिवाइड कर दूं 100 को. वैसे तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, पर अगर ना भी होता तो मैं 2, 3, 4, 5 अप टू 50 तक जाता. किसी के साथ भी डिवाइड हो रहा है वो नंबर तो वो प्राइम नहीं है. ये हो गया 2 से लेके n/2 तक का मेथड. एक था पहले वाला 2 से लेके n-1 तक, 2 to n-1. सेकंड मेथड 2 to n/2. मेथड 3, अब डिवाइड करो किसके साथ, 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक. मतलब अगर 100 है तो 2 से लेके 10 तक कर लो, काफी है. ठीक है, और मेथड बताऊं कि ये काफी है? हाँ जी, इसमें से कौन सा मेथड करके यूज करें हम, प्रोग्रामिंग बनाएं, बताओ. थर्ड वाला, ठीक है. So let's use the third method to find if my number is prime or not. It will take me 2-3 अभी minutes. बताने वाले थे. आप लोगों ने बोला ही नहीं कि और बताओ. सुनो, एक मेथड 4 है, स्मार्टेस्ट वे. It is called sieve of Eratosthenes method. इसका मतलब ये है कि रूट n तो जाना ही है, 2 से लेके रूट n तक जाना है. मतलब 2 छोड़ो, रूट n करो और उस रूट n तक के सारे प्राइम नंबर लिख लो. फॉर एग्जाम्पल मुझे 110 का निकालना है, तो 110 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 पॉइंट समथिंग. तो मैं 10 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लूँ, 2, 3, 5 एंड 7. तो आप इस नंबर को सिर्फ इन 4 नंबर से डिवाइड कर दो
अगर फैक्टर हुआ तो प्राइम नहीं है, अगर इन चारों से डिवाइड नहीं हुआ फिर परवाह नहीं, फिर वो किसी से नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपकी कैलकुलेशन सबसे मिनिमम हुई। दिस इज द सीव ऑफ इरेटोस्थिन मेथड। इस केस में अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो उसमें बस एक यही कंडीशन है थोड़ी सी, कि लेट्स से आपको 987 का निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी 987 का स्क्वायर रूट? हाँ जी बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 987? 31.4। 31.4, तो 31 लेके चलते हैं, ठीक है। 31 तक के प्राइम नंबर लिख लो। अब इसमें बस एक यही छोटा सा ड्रॉबैक है कि आपके पास एक बैकएंड पे प्राइम नंबर्स की फाइल होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आप बहुत तेज निकाल पाओगे बाकियों का। फॉर एग्जांपल आप 1 से लेके 1000 तक के प्राइम नंबर अपने पास सेव कर लो कहीं पे बैकएंड पे। उससे क्या होगा, वैसे तो 31 तक के भी काफ़ी हैं, इतना बड़ा नंबर कवर हो गया अपने आप। तो अगर आप 100 तक के भी प्राइम नंबर सेव कर लोगे तो आपकी रेंज 10,000 तक की चली गई। आप 10,000 तक के सारे नंबर्स का बहुत जल्दी बता पाओगे अगर आपके पास सिर्फ पहले 100 तक के प्राइम नंबर हैं, जो कि शायद 25 होते हैं। 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 नंबर सेव कर लो सीक्वेंस में, 10,000 तक के प्राइम नंबर बता पाओगे कि येस और नो। और ये 31 तक के प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। कोई और होता है? 31 भी होता है, कोई रह गया? हाँ जी, कोई रह नो गया हो सर। तो बताओ। कुछ नहीं रहा, यही है इसका मतलब। मुझे 987 को चेक करने के लिए सिर्फ इन नंबर्स के साथ डिवाइड करके देखना है। अगर इनमें से किसी के भी साथ हो गया ये डिवाइड पूरा, तो ये प्राइम नहीं है, वरना है। इस केस में ये है, मतलब ये प्राइम नहीं है, ये डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा इट विल बी 329। तो ये प्राइम नहीं है 987। तो ये बहुत फास्ट मेथड है और ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज होता है, सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स, ठीक है। अब तो मैं पर एग्जाम में तो हम 3 ही कर पाएंगे ना। आप 4 नहीं कर रहे एग्जाम के लिए, ये एक्स्ट्रा बताया गया है, आपको 3 तक का ही आना चाहिए एग्जाम के लिए अगर आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक क्विकली अबाउट द मेथड 3। आई विल डू द कोडिंग फॉर मेथड 3। हम मेथड 3 को यूज करके फटाफट से प्रिंट करेंगे कि ये मेरा नंबर प्राइम है या नहीं। So let me do the programming for prime or not. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मुझे स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना है, तो आई विल यूज अ math.h. Let me give the input of the number as n. इसको डिलीट करो जी। बताओ क्या करें, फटाफट से बताओ। एक कंसेप्ट होता है फ्लैग का, मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूँ कि मेरा नंबर ये प्राइम होगा, ठीक है। ये मैं बताता हूँ फ्लैग क्यों यूज कर रहा हूँ। एंड देयर इज ऑल्सो वन कंडीशन कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में क्लास में डिस्कस हुआ अभी? एनीवन? नहीं सर। कोई ना, अभी बता देता हूँ मैं, पहले एक बार कोड बना दूँ फिर समझाता हूँ क्या हो रहा है। फ्लैग इक्वल टू 1, फॉर लूप चलाऊँ कि वाइल? चलो वाइल चलाते हैं। नहीं फॉर ही चलेगा इसमें क्योंकि 2 से जाना है। ओके, फॉर इंट आई इक्वल टू 2 से लेके आई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, तो मैं क्या करूँगा, sqrt ऑफ n तक जाना है। एंड आई विल डू आई प्लस प्लस सेमीकोलन आना है यहाँ पे। अगर इनमें से किसी के भी साथ ये डिवाइड हो जाता है मेरा नंबर, जो कि मेरा n है, तो मैं क्या करूँगा, इफ n इज
डिविजिबल बाय आई अगर इक्वल इक्वल 0 हो जाता है, इसका मतलब डिवाइड हो गया, तो मैं अपने फ्लैग को बोलूँगा कि चल 0 कर इसको, मतलब ये इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये प्राइम नहीं है. फ्लैग इज जस्ट ए सिंबल के दिस विल हेल्प मी लेटर ऑन टू डिसाइड टू टेक द डिसीजन दैट इफ इट इज प्राइम और नॉट. और मैं यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, इसका मतलब समझाता हूँ क्या है. बाहर आके मैं लिखूंगा कि इफ माई फ्लैग इज स्टिल 1 आफ्टर द फुल प्रोसेसिंग अबव, आई विल से इट इज प्राइम नंबर, else it is not. अब इस कोड को समझते हैं. पहले मैं इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर बोलो जिसको आप टेस्ट करना चाहो प्राइम है कि नहीं, जल्दी. 387. 387, ये लो, नॉट प्राइम. और बताओ. 79. प्राइम. ठीक है कोड तो अपना. अब देखते हैं हो क्या रहा है और ये ब्रेक का क्या मतलब है. देखो मैंने बोला था कि मैं 2 से लेके स्क्वायर रूट तक जाऊंगा, और अगर कोई भी एक डिवाइड हो गया तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ठीक है यार ये प्राइम नहीं है, क्योंकि उसका फैक्टर मिल गया. सो व्हाट आई कैन डू इज इंट एन, और एन को मैंने इनपुट करवा लिया, ये तो बड़ा सिंपल है, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है. और फ्लैग का मतलब ये है कि मैंने एक सिंबल ले लिया टू सिग्निफाई के चल ठीक है यार बाय डिफॉल्ट तू प्राइम है, मान के चलते हैं कि तू प्राइम है, ठीक है प्राइम है तू, लेकिन आई विल स्टिल डू ए चेक. अगर तू अंदर पकड़ा गया तो मैं तेरा प्राइम वाला जो मैंने तेरे को बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू दी है कि तू प्राइम है, मैं बोलूंगा कि तू नॉट प्राइम है. तो मैं देखता हूँ अंदर जाके व्हाट हैपन्स. आई डू आई इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जाना है. फॉर एग्जांपल आपने बोला 79, तो 79 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है. तो मैं 8 तक जाऊंगा, 2 से लेके 3 4 5 6 7 8, तो मैं 8 तक जाऊंगा. मैं सिर्फ इन नंबर्स के साथ तेरे को चेक करूंगा. अंदर आया, डिवाइड किया, अगर बाय डिफॉल्ट 0 हो जाता है, इस केस में तो वैसे 79 में नहीं होगा, और अगर नहीं होता तो ये इसके अंदर जाएगा नहीं. इसके अंदर नहीं गया, लूप खत्म करके चुपचाप शराफत से बाहर आ जाएगा और बोलेगा कि मेरा फ्लैग 1 ही है, इसका मतलब ये प्राइम है. लेकिन बाई चांस ये 78 होता, नंबर फिर भी वही सारे चेक हो रहे होते, डिवाइड बाई 2 पहली बार में ही पकड़ा जाता, उसको हम बोलते कि चल तेरा फ्लैग 0 करें. फ्लैग 0 करके ब्रेक. अब ब्रेक का मतलब ये होता है कि एक बार ब्रेक लग गई, अगर मैं एक बार लूप में घुस गया, ये सारा लूप के अंदर का पार्ट है, एक बार भी ब्रेक में मैं फंस गया तो इसका मतलब मैं पूरा लूप से बाहर फेंका जाऊंगा, ठीक है. चाहे आपने उसके अंदर नेस्टेड इफ लगा रखे हैं, इफ के अंदर इफ लगाया, फिर से इफ लगाया, उसके अंदर जाके कहीं ब्रेक हुआ, तो आपको कोई नहीं बचा सकता. अगर आप फॉर लूप में थे तो आप उस पूरे लूप से बाहर फेंके जाओगे, इर्रेस्पेक्टिव आप कितने अंदर थे इफ के, ठीक है. तो इसने मेरे को बाहर फेंका यहाँ पे पहली बार में ही, क्योंकि वो डिवाइड बाई 2 हो गया 78 वाला. तो उसने बोला कि अच्छा यार तू 0 लेके आया है, इक्वल टू 1 तो नहीं है, तो इसलिए तू नॉट प्राइम है इन केस 78 होता एन. क्लियर, कोड क्लियर हुआ. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ इट इज योर ड्यूटी टू कन्वर्ट दिस कोड इनटू 1 to z वाला, ठीक है. 1 to z वाला मैं नहीं करूँगा, 10 मिनट्स रह गए हैं. आई विल क्विकली कवर द फिबोनाची सीरीज. अरे यार आईडी ऑन, लेट्स से 78, run, it is not prime. Now let's do the code for Fibonacci series. This is the last code for today. Can anyone tell me what is Fibonacci series? Sir, any term of the series is sum of the preceding two terms. Yes.
सो फिबोनाची सीरीज मैथमेटिकली देयर आर 2 वर्जन्स. कोई इसको 0 से स्टार्ट करता है तो वी से द सीरीज इट लुक्स लाइक दिस. 0 1 से शुरू होगा तो पिछले 2 का सम करते जाएंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे. एंड सिमिलरली कोई मेरे को ऐसे भी मिलते हैं जो लोग इसको प्रेफर करते हैं कि 1 1 पहला होगा, फिर 2 3 5 8 13. ठीक है, तो ऐसे भी होता है. तो हमें इन दोनों को प्रिंट करना आना चाहिए. सो माई कोड इज, जो मेरे को प्रोग्राम बनाना है, इट शुड बी प्रिंटिंग फर्स्ट n फिबोनाची नंबर्स. मेरा प्रोग्राम ये है एंड वी विल सॉल्व इट फॉर बोथ द टेक्निक्स, सीरीज ए सीरीज बी. ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि मेरे को फर्स्ट 10 नंबर्स चाहिए, तो पहले वाले के हिसाब से फर्स्ट 10 नंबर्स आर टिल 34. सेकंड वाले के हिसाब से 10 numbers are till 55. So we will make this code and I will explain it to you कि ये काम कैसे कर रहा है. We will quickly make this. Fibonacci series. ठीक है. Deleting everything. सर Yes. सर ये वैसे सीरीज यूज कहाँ पे होती है, मतलब है क्यों ये? मैथमेटिकल सीरीज है, जैसे साइन सीरीज है, कोसाइन सीरीज है, ऐसी फिबोनाची सीरीज है. इट इज ए मैथमेटिकल सीरीज. ठीक है. सो मतलब यूजलेस है? आना चाहिए यार ऐसे तो. अब इवन ऑड मतलब हमें पता है इवन ऑड का प्रोग्राम क्यों बनाए, ये तो देख के पता चल यस रहा है कि सर. इवन है कि ऑड है. आना चाहिए. कल को कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनानी पड़ जाए तो ये छोटी मोटी चीजें आती होंगी, तभी आप जोड़ कर कुछ बड़ा बनाओगे, है ना. हाँ जी. तो इसलिए पढ़ रहे हैं. ओके, फिबोनाची सीरीज बनानी है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंट a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 कर दूंगा इनिशियली, और एक c रख लूंगा एम्प्टी. और कुछ चाहिए होता है. ओके, कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर, मुझे क्या करना है, फर्स्ट n नंबर चाहिए ना. ठीक है, तो मैं एक n इनपुट करवाता हूँ. कॉमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, scanf %d. मैंने n इनपुट करवा लिया कि मेरे को पहले 10 नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, while my n is not 0, जब तक मेरा 0 नहीं होता तब तक मैं n माइनस माइनस कर दूं. एक कम करना, अब अंदर आके एक कम करा है, पैसे कट गए हैं, अब प्रिंट तो करवाना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहला नंबर प्रिंट करना है. तो कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले c कैलकुलेट करूंगा. c इक्वल टू a प्लस बी. c इक्वल टू a प्लस बी करा तो c का वैल्यू कितना आया पहली बार, 1 + 0 1 आया, 1 है ना. तो अब यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट f %d स्पेस कॉमा c स्पेस, इसलिए क्योंकि मैं एक ही लाइन में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ पूरी सीरीज को. देन छोटा सा एक स्मॉल हैक, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, आपस में वैल्यू हो गए हैं स्वैप. मुझे लग रहा हो गया कोड खत्म हो गया कोड, इतना ही था. तो लेट्स सी हाउ द सीरीज लुक्स लाइक. मैंने बोला 10, आउटपुट आया 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड 55. ठीक है, अब अगर आपको इस सीरीज को 0 से शुरू करना है तो व्हाट चेंज शुड आई मेक, जल्दी से बताओ. सर हमने n माइनस माइनस क्यों किया है? क्योंकि मैंने 10 नंबर प्रिंट करवाने थे, मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी कि मेरा अगर n 10 है तो 10 0 से बड़ा है. चल ठीक है, अंदर आओ, 9 करा और ये ख़त्म किया. वापस गए 9 > 0, अंदर आया 8 किया और ये ख़त्म किया. ऊपर गया 8 यस आया. सर, ठीक है. ठीक है, उल्टी गिनती चल रही है. हम्म. और बताओ, इस कोड में सबसे पहले एक आवाज आई थी दैट इट इज द सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग नंबर्स. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. करना क्या है, इनिशियली मेरे पास a1 है, b0 है, ये a है, ये b है, c मेरा अभी खाली पड़ा है.
तो मैंने क्या किया, सी को कैलकुलेट किया, सी आया a प्लस बी, क्या हुआ 1 आ गया, और इसको मैंने प्रिंट भी करवा दिया, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर बन गया। a इक्वल टू बी मतलब ये नंबर इधर आया, एंड b इक्वल टू सी मतलब ये इधर आया, तो ये हो गया 0 1। दोनों को सम किया 1 आया, फिर से प्रिंट हो गया, दोबारा से a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, सम किया 2, फिर ये आंसर आया 3। तो ऐसे करके ये सीरीज प्रिंट होती जाएगी। क्लियर है, आसान है? यस सर। हो जाएगा ये। अब मेरे को ये बताओ, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस सीरीज इनटू द अदर फॉर्म, अगर मुझे इस सीरीज को 0 से शुरू करना है, ना कि 1 से। 0 1 आना चाहिए सबसे पहले, और टिल 34 जाएंगे अगर 10 करवाने हैं। बताओ क्या चेंज करूं और कहाँ पे करूं, देन वी विल एंड द लैब ये होने के बाद। जल्दी बताओ। सर ए को 0 इनिशियलाइज सर कर दोनों ही दीजिए। 0 दे दो। दोनों 0 दे दिए तो वहीं पे घूमते रहोगे। ये लो, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। रन करो, 10 करो। हाँ जी, क्या बना दोनों 0 करके? रेदर अगर आप यस यहाँ सर। पे c इक्वल टू a प्लस बी पहली कर दो, इनफैक्ट a प्लस बी नहीं, c इक्वल टू 0 कर दो, और यहाँ पे इसको सेकंड नंबर पे ले जाओ। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्कीम लगा ली, वो ये किया है कि इनिशियली मेरा अगर c 0 है तो मैं 0 को पहले प्रिंट करवा के वेला हूँ, ठीक है, 0 की टेंशन खत्म, वो तो आएगा ही। फिर मैंने a प्लस बी किया, 1 हुआ, फिर वो गेम शुरू कर देगा अपनी 1 1 वाली। आसान हो गया। और अगर मैं अब इस कोड को रन करूंगा, मैंने बोला 10, तो मेरा आंसर 0 से लेके 34 तक है। क्लियर? यस सर। मुझे 0 की टेंशन थी, मैंने 0 सी को दे दिया और सी को पहले प्रिंट करवा दिया कि 0 तो सबसे पहले तू ही जा, बाकी बाद में होता रहेगा। आसान है जी। इस कोड को सर मैं इधर हम डू वाइल यूज कर सकते थे। टू वाइल कर लो, करके देख लो, काम होता है तो चल मतलब जाएगा। आप वो जो आपने पहले प्रिंट एफ नीचे लिखा हुआ था वही रहता, और हम डू में लिख देते प्रिंट एफ सी, तो भी हो सकता था शायद। हम्म, यार इसका एक्चुअली एन के साथ कोई लेना देना है नहीं। एन तो नॉर्मल चल रहा है, वो 10 2 0 वाला, वो तो 10 बार चलना ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आप कह रहे हो। आप करके देखना अपने एंड पे, अगर हो जाता है तो मेरे को बताना, ठीक है? क्योंकि मेरी समझ कहती है कि हम वाइल में सिर्फ एन के साथ गेम खेल रहे हैं, बाकी तो वो उसका एक्स्ट्रा एक टास्क जोड़ दिया हमने साथ में। कर तो हम सिर्फ एक तरह का 10 2 0 की काउंटिंग रहे हैं, अब वो 10 बार में करना क्या है, वो एक एक्स्ट्रा एडिशन है यहाँ पे और कुछ नहीं। सो आई विल शेयर दिस कोड विद यू राइट नाउ, एंड फिबोनाची वाला भी कंप्लीट है। जस्ट अ सेकेंड। Let's print first 15 numbers. Okay. Copy this link. इसको use करो and work with it. So we have covered a lot of things today. We have covered many programs. We started with even odd. We did the C into Fahrenheit, Celsius into Fahrenheit. Greatest of three numbers आप खुद करोगे, आपने बोला था। मैंने if else करके, मतलब we did the ternary operator वाला discussion on the even odd. Greatest वाला आप खुद बनाओ। उसके बाद length of the number, sum of digits, reverse of a number we completed. Then we discussed the Armstrong number, prime and Fibonacci series. That's all for today. Thank you. I'm ending the lab. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye.